everyone, so let's move towards our today's topic, which is hypothalamus and subthalamus. First, we will gonna talk about subthalamus. Subthalamus is located between the midbrain and the thalamus. It consists of two parts, gray matter and white matter. Gray matter consists of subthalamic nucleus. Obviously, as the name indicates, subthalamus है तो subthalamic nucleus होगा, याद रखना आसान है. As well as it consists of, the gray matter also consists of zona incerta. What is zona incerta? It is a thin layer and thin lamina basically, which is present in the gray matter of the subthalamus, and it deals with the thirst mechanism. Thirst होता है ना, drinking of water. It deals with that function. And white matter of the subthalamus consists of subthalamic fasciculus. It's very simple and very short. Now moving towards the most important, Diencephalon. As you know, Diencephalon consists of four parts: thalamus, hypothalamus, subthalamus, and epithalamus. The most important one are thalamus, and then afterwards it's hypothalamus. So as we have already discussed about thalamus in previous video, in this video we are going to talk about majorly about hypothalamus. As you know, hypothalamus is a part of Diencephalon and it is present in the floor of the thalamus. Below thalamus and between thalamus and hypothalamus there is a sulcus known as hypothalamic sulcus. Now what are the boundaries of the hypothalamus? Anteriorly lamina terminalis is present. Inferiorly the floor of the third ventricle is present. Superiorly hypothalamic sulcus, as I have already told you, and on each side of hypothalamus optic tract is present. Okay, now what are the nuclei which are present in hypothalamus? Remember these names. First of all, remember that hypothalamus is divided into three parts: optic part, tuberal part, and mammillary part. Now in these three parts, nuclei are divided. Optic part, as the name indicate, pre-optic nuclei होंगे, supra-optic nuclei होंगे. तो ये जो nuclei हैं ये optic part में होंगे, क्योंकि word optic आ रहा है, इस तरह आप याद रख सकते हैं. फिर ट्यूबरल पार्ट में ट्यूबरियल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एज द नेम इंडिकेट, ट्यूबरल न्यूक्लियस, ट्यूबरियल पार्ट. फिर मैमिलरी पार्ट में अलग बात है, वो हम बाद में करते हैं. तो जो आसान वाले थे वो हमने कर लिए. ऑप्टिक पार्ट में प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लिया. ट्यूबरल पार्ट में ट्यूबरल न्यूक्लिया, ठीक है. ऑप्टिक पार्ट में पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लिया भी होते हैं और सुपरा शियास्मेटिक न्यूक्लियस भी होते हैं. ओके, जबकि ट्यूबरल पार्ट में वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई भी होते हैं, आर्क्यूएट न्यूक्लियस भी होते हैं. और मैमिलरी पार्ट में दो न्यूक्लियाई आपको याद रखने हैं, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई एंड लैटरल न्यूक्लियाई. दैट्स इट. दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ आपको इजीली याद हो जाएंगे, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. फंक्शंस आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है हाइपोथैलेमस के, मैं बता देता हूँ. हाइपोथैलेमस का मेजर फंक्शन, बिकॉज इट मेंटेन्स द homeostasis basically. Now it is also considered as master gland of the body. Now it secretes hormone, it maintain temperature by pre-optic nuclei, ठीक है. साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कौन सा न्यूक्लिया क्या कर रहा है. जितने याद मैं करवा रहा हूँ ये तो आपने ज़रूर याद रखना है, उसके अलावा आप याद करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन जितने मैं आपको याद करवा रहा हूँ याद रखिएगा. मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर किससे मेंटेन होता है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से. Then drinking center is present on the lateral part of the hypothalamus, and the hunger center, it is present on the medial side. Circadian rhythm are controlled by suprachiasmatic nucleus. What is circadian rhythm? Biological clock, as we have already discussed earlier in intermediate as well, that circadian rhythm के आप रात को सोते हैं, जैसे ही रात होती है आपको नींद आना शुरू हो जाती है. दोपहर होती है आपको भूख लगती है क्योंकि दोपहर का खाना खाते हैं. सुबह होती है तो आपको नाश्ता करना होता है. तो ये सारी एक सर्कैडियन रिदम है. हमारी बॉडी में हर ऑर्गन को, वो काफ़ी सारे ऑर्गन को टाइम टू टाइम डील करना पड़ता है. फिर बात करते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई की. प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई कंट्रोल्स पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई कंट्रोल्स पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है? जो कंट्रोल करती है नॉर्मल चीज़ों को. हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लो करती है, लो ब्लड प्रेशर, लो हार्ट रेट, डाइजेशन, ठीक है. और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को पोस्टीरियर न्यूक्लिया कंट्रोल करता है, ठीक है. पोस्टीरियर न्यूक्लिया इज प्रेजेंट इन मैमिलरी पार्ट, वेयर एज प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया इज प्रेजेंट इन ऑप्टिक पार्ट.
posterior nuclei controls sympathetic activity. What is sympathetic activity? Flight or fight action. Temperature और जो एंग्री वगैरह हो जाते हैं, जब गुस्सा आ जाता है तो वो sympathetic activity कंट्रोल करती है. लेटरल न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है और वो ऑब्वियसली मेमोरी पार्ट में होता है. लेटरल न्यूक्लियाई कंट्रोल्स फूड डिज़ायर. ठीक है, फूड डिज़ायर, आपको भूख लगती है ना, तो वो बेसिकली हंगर सेंटर भी होता है और लेटरल न्यूक्लियाई भी होता है. ठीक है, तो वो बेसिकली जो कंट्रोल कर रहा होता है वो लेटरल न्यूक्लियाई कंट्रोल कर रहा होता है. इसमें कोई ख़ास बात इतनी कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायनसेफेलॉन इज़ थैलेमस. सो थैलेमस तो आपने याद करना है, देन हाइपोथैलेमस थोड़ा बहुत ज़रूर कर लीजिएगा. टिल देन ख्याल रखें अपना. बाय.